गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस इन द मंथ ऑफ मे। ये जो रीडिंग रहेगी वो कंप्लीट रीडिंग रहेगी फॉर द होल मंथ, मे मंथ के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ओरेकल मैसेजेस हैं। हैप्पी जेमिनी, मई मंथ आपके लिए बहुत हैप्पी टाइप का मंथ रहने वाला है। जेमिनी के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ओरेकल मैसेजेस है, क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे 2026 जेमिनी। मिल्क एंड हनी, टिकटॉक, ओके, रिजनरेशन, all that glitters, a change in the wind, ठीक है। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम रीजनरेशन का कार्ड देखेंगे, ओके। Rebirth, second chance, new opportunities. Second chances are available to you now. Whatever opportunities you thought were dead are now revived in a more authentic, stronger form. Whatever you may have perceived as a failure or loss is now being replaced by something better and more powerful growing in its place. This rebirth is assured. Step into your new life. Destiny is being fulfilled in wondrous ways, ठीक है। नंबर 12 देख लेंगे, अ चेंज इन द विंड। A sense that unseen change has been initiated, preparation for a storm, awareness that your plans are not on firm ground, feeling a shift, uncertainty about which direction the winds will blow. It's human nature to yearn for certainty and resist change, to want the world to remain consistent like a zebra's stripes, yet nothing in human experience is black and white, nor will anything remain static. The one thing guaranteed is change. Now is a time of transformation as outer conditions are temporarily moving out of sync with your desires and expectation. Stay the course and remember that even storms serve to clear the air, scatter sheets, and nourish the soul for better things ahead. Life is about to get interesting. Anticipate it with curiosity as you wonder what is coming in on the shifting winds. The unknown is where the magic lies. Okay. TikTok, timelessness, divine timing, immeasurable time. When humans created time, everything changed and contracted. People have come to look at time in a linear way, imagining that the past is behind them and the future ahead of them. But what if that is not true at all? What if everything, creativity, beauty, chaos, and order were happening now in a glorious timelessness? You have all the time in the world to co create the life you desire. So release your agenda, let go of your need to shape each moment or to your expectation, knowing that what is yours will never be withheld from you. Miracles are here right now and always show up when you need them right on time.
मिल्क एंड हनी, ठीक है। The taste of prosperity, opportunities born of authenticity, nurturing abundance, trusting that your needs will be met. You have entered a sweet time in your life, enjoying the land of milk and honey that everyone wants to experience. It's an interlude that feels more languid than ambitious, when all your senses are awake to the unlimited possibilities in the universe. These times are precious and only come when you are in your authentic zone, wearing the world as a loose garment, not wanting yet able to nourish in ways both tangible and subtle. Abundance is an energy that you are a living part of. All your needs are being met. You are given the gift. ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिल्क एंड हनी। The taste of prosperity, opportunities born of authenticity, nurturing abundance, trusting that your needs will be met. You have entered a sweet time in your life, enjoying the land of milk and honey that everyone wants to experience. It's an interlude that feels more languid than ambitious, when all your senses are awake to the unlimited possibilities in the universe. These times are precious and only come when you are in your authentic zone, wearing the world as a loose garment, not wanting yet able to be nourished in ways both tangible and subtle. Okay, so next card है happy happy 2697. Okay. Joy and content, a sense of fulfillment, a feeling that all is well. Your desires are effortlessly fulfilled now. Find joy in the present moment, whatever is happening, and be satisfied with things as they are. You are free from the shackles of longing and able to experience the liberation that comes from actually being happy. Moment to moment, for you have chosen happiness over yearning for it. Now is the time for feeling joy for the sake of joy and experiencing contentment. None of this is because of something outside yourself. Your happiness is a result of your being at home with the Spirit's plan for your life. All is well. The tide is in for now. Enjoy playfully, splashing in it. Wow. सो हम टैरो से भी देख लेते हैं क्लैरिफाई करके कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैप्पी हैप्पी क्यों आया है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी अच्छी हैं क्योंकि आप बहुत डेडिकेटिवली एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत खुश हो, आपको आपकी ये जो मेहनत और एफर्ट्स है ना, इसकी वजह से आप अंदर से बहुत कंटेंटेड भी फील कर रहे हो। मिल्क एंड हनी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको ये फेथ दे रही हैं, आपको ये होप दे रही हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आपके लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है नियर फ्यूचर में। आप बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो जेमिनी। लेकिन कुछ है जो जहाँ पे एक वेटिंग हो सकती है। टिकटॉक का भी कार्ड है। वेटिंग पीरियड में आप हो सकते हो जिसकी वजह से लगातार कन्फ्यूज़न है। हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव में हो, या अदर किसी तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज़ का हो सकता है वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेंस ऑफ वेटिंग रह रही है। रीजनरेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट, किंग ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में क्लियर हो कि आप किसी भी तरह के बदलाव के लिए रेडी हो, ठीक है। आप किसी भी तरह के चेंज के लिए आप खुद को रेडी करके चल रहे हो, ओके। ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पे क्यों आया है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, और ये चेंज बहुत बेटर के लिए है जेमिनी, ठीक है, ये पॉजिटिव चेंज है। अ चेंज इन द विंड यहाँ पे क्यों आया है, द लवर्स। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये इंट्यूटिव फीलिंग है कि आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनरशिप में एक चेंज आने वाली है, ठीक है। ओके, सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। लेट्स सी कि जनरली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मई मंथ में जेमिनी। जनरल तरीके से आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चेंज आने वाली है मई मंथ में जेमिनी मिथुन राशि के लिए। जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक फील हो रही हैं आपको मई मंथ में भी, कि चीज़ें बहुत स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही है जेमिनी, ठीक है। आपको लग रहा है चीज़ें एकदम स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही हैं, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हैं। हालांकि और आप एक डिसीज़न लेने की एज में दिख रहे हो, कोई डिसीज़न है जो आप लेना चाह रहे हो, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीज़न हो सकता है जिसको आप लेना चाह रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी स्टक हैं, लंबे समय से चीज़ें स्टक नज़र आ रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि जैसे अभी कुछ दिनों से ही चीज़ें स्टक हैं, ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म एनर्जी में हो आप इस स्टकनेस में। लाइक लंबा समय बीत गया है जहाँ पे चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, स्टक ही नहीं, लाइक चेंज ही नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल वट एवर जो भी सिचुएशन है ना, आपको यहाँ पे बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं यहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व हो। एट द सेम टाइम आप थोड़े से डिटैच भी दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल प्रोसेस। आपके अंदर एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट हो रही है, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, जेमिनी के लिए। किंग ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो भी डिसीज़न आप लेने जा रहे हो वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप इमोशनली बहुत बहुत अटैच्ड और कनेक्टेड फील कर रहे हो इस सिचुएशन से, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग तरीके से इन्वॉल्व हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, द डेविल। ओके, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी भी हैं, कार्मिक भी दिख रही हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लंबे समय से आप एक रिपीटिंग साइकिल में हो सकता है फाइनेंशियली भी आप स्टक फील कर रहे हो। और अगर फाइनेंशियली नहीं है तो हो सकता है कि रिलेशनशिप या फैमिली को लेके या अदर कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील कर रहे हो कि ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, लगातार सेम पैटर्न सेम तरीके से चल रही हैं आपकी लाइफ में। थोड़ी सी अनहेल्दी एनर्जी है, थोड़ी सी अनहेल्दी फीलिंग है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए, जजमेंट। अगेन जजमेंट, घूम फिर के वही कार्ड्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि बस आप एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज आप इस डिसीज़न से इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हो। कोई रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीज़न हो सकता है या आपके करियर को लेके कोई डिसीज़न हो सकता है। और 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की लगातार कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहे हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, या फिर आप किसी तरह की एनर्जी एक्सचेंज में दिख रहे हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, मूवमेंट शो हो रही है और लगातार एक कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। सो आप किसी तरह से किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सॉरी। सो ये हम टैरो से देख चुके हैं जेमिनी आपके लिए। अब हम चेक करेंगे कि लव लाइफ में आपके क्या आ रहा है जेमिनी। मिथुन राशि, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है मई मंथ के लिए, क्या चेंजेस आप देखने वाले हो मई मंथ के लिए लव लाइफ में। डेथ, एस ऑफ सोर्ड,
एंड स्ट्रेंथ। ओके, पहली चीज़ आप एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी लव लाइफ में दिख रही है। स्टेबल कमिटमेंट हो सकता है, आप ऑलरेडी मैरिज की तरफ जा रहे हो, या आपकी लाइफ में एक स्टेबल पार्टनरशिप आ रही है, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कमिटमेंट दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, प्लस आप एक स्पिरिचुअल, डीप स्पिरिचुअल लव में भी दिख रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो सब एक लंबे समय से नज़र आ रही है। लाइक आपकी लव लाइफ में चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं, लंबे समय से आप एक पेशेंस रख रहे हो, लंबे समय से आप एक वेटिंग मोड में रह रहे हो, ठीक है। और पता नहीं क्यों अंदर ही आपको क्लैरिटी हो रही है कि जैसे ये कनेक्शन एंड हो रही है, या ये कनेक्शन एंडिंग प्रोसेस की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हिम्मत बनाए हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप वेट करना चाह रहे हो, आप पेशेंस रखना चाह रहे हो। मे बी इंट्यूटिवली यू फील लाइक कि ये कनेक्शन एंड हो जाएगी, या एंडिंग की तरफ ही जा रही हैं चीज़ें। सो अगेन आप किसी लियो से, स्कॉर्पियो से एंड टॉरस से डील कर रहे हो। एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है ना जेमिनी, क्योंकि हो सकता है आपकी लव लाइफ में बहुत रिपीटिंग पैटर्न में चीज़ें बदली हों, चीज़ें चेंज हुई हो, या आपने ऐसी कई चीज़ें देखी हो आपकी लव लाइफ में जहाँ पे चीज़ें बार बार एंड हुई हैं, बार बार डेवलप हुई हैं, एंड हुई हैं, डेवलप हुई हैं, एंड हुई हैं, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट फैक्टर भी आपने खो दिया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। सो देखते हैं यहाँ पे डेथ क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या यहाँ पे स्ट्रगल है कॉन्टिन्यूसली, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है लगातार आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रगल्स भी क्रिएट हो रही हैं, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, और जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, ठीक है, या ये सिचुएशन ओवर हो जाएगी। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर ही अंदर ये क्लैरिटी भी है कि ये चीज़ें आगे फ्यूचर में डेवलप हो सकती हैं किसी तरह की ब्यूटीफुल आउटकम में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी भी है कि आगे चल के ये कनेक्शन अच्छे तरीके से बढ़ सकती है, और भले ही ये स्ट्रगल जो आप देख रहे हो, जो इस कनेक्शन में आप फेस कर रहे हो, वो कितने भी टाइम से क्यों ना चल रहा हो, बट ये स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और आप दोनों कहीं ना कहीं एक स्टेबल पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हो। स्ट्रेंथ क्यों आया है जेमिनी के लिए? हाई प्रीस्टेस। इसीलिए आपका अंतर्मन आपसे यही कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, होप्स रखनी है, पेशेंस लूज़ नहीं करना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, हिम्मत रखनी है, ठीक है। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड। और आपको ये क्लैरिटी भी है कहीं ना कहीं कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस, टॉरस, लियो एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। दिस इज द रीडिंग फॉर, ओ माय गॉड, सॉरी, देख लेते हैं आपके करियर और जॉब में आगे क्या आ रहा है जेमिनी। सिक्स ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली आपके करियर में। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन हो सकता है। आपके अंदर एक अथॉरिटी भी दिख रही है जेमिनी। आप अपने थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो अपने करियर को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आपके चल रही हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे जेमिनी ने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ दिया हो और किसी न्यू फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो आप अगेन किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो।
कुछ मैसेजेस हम और चेक करेंगे मिथुन राशि के लिए। सो जेमिनी, देखते हैं हम आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आने वाले हैं मई मंथ के लिए। क्या ओरेकल मैसेजेस हैं आपके लिए। स्टैंड योर ग्राउंड, सेक्रल चक्रा, material and spiritual prosperity, trapped in fear, rejoice in celebration। द वर्ड कार्ड एक तरह से डेस्टिनी का कार्ड भी आ गया है। नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 3 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए, आप जो सोच रहे हो, आप जो क्रिएट करना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, उसकी तरफ आगे स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने लिए बोलने की ज़रूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है जेमिनी, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके साथ है। डिवाइन की एनर्जीज कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रही हैं। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड या क्योंकि हो सकता है कोई सिचुएशन है जो आपको लगातार ट्रबल कर रही है, लगातार आप मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, लगातार आप सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू या किसी सिचुएशन के थ्रू। तो यूनिवर्स कह रहा है आपको अपने लिए एक एक्शन, एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। सेक्रल चक्रा, हो सकता है डाउट्स हो, एक लैक ऑफ क्लैरिटी भी हो आपके मन में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी ये सिचुएशन है, इसको लेके आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और शायद इसीलिए आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे क्यों आया है। डेथ। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आप मटेरियली भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मई, और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो सकता है आपको ट्रस्ट ना हो रहा, हो सकता है रिसेंट में आपने इस तरह के मेजर किसी लॉस और सफरिंग के थ्रू आप गुजरे हो, या लंबे समय से कोई लॉस का पीरियड आपने फेस किया हो, जिसकी वजह से जो भी हो रहा है हो सकता है उस पर आपको ट्रस्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह का न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ की तरफ आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैप्ड इन फियर, अगेन फियर है कि चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, जो आपको मिल रहा है अभी वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और चीज़ें थोड़ी सी स्लो मूविंग तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आपको ये भी, इस बात का भी फियर है कि जो आप चाह रहे हो, जो आपने ड्रीम किया है, डिज़ायर किया है, वो होगा भी या नहीं होगा। रीजॉइस इन सेलिब्रेशन, 4 ऑफ सोर्ड, ऐसे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, गेट टुगेदर है, लेकिन आप कुछ भी पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेंटली आप थोड़े से डिटैच ही रह रहे हो। फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है, ओके। ओके, सो जेमिनी, हम देखेंगे कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटिंग पैटर्न्स, कार्मिक लेसन। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी इस पर्सन का कोई कार्मिक कनेक्शन हो, या अगेन वही पैटर्न रिपीट होने लग जाए आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में भी। सेकेंड चांस, रिकन्सिलेशन, मेकिंग अबेंस, अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें। प्लस ये बहुत लॉयल दिख रहे हैं आपको लेके, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग, ऐसे लग रहा है ये आप पर भरोसा कर पा रहे हैं, इन्हें आप पर ट्रस्ट है, और एक धीरे धीरे एक ट्रस्ट डेवलप हो रही है। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो